Hello students. In this video we will do one more question of vectors. जैसा कि हमने previous videos में vectors के बेशुमार questions किए हैं, इस वीडियो में हम vector के एक और question को देखेंगे. So here's a situation in front of you where three forces are acting on a ball. Here's a ball. ठीक है, the weight of this ball is acting vertically downwards and its value is 10 newtons. In this question you have to find the values of tension in the string, that is T1 and T2. Okay students, this is very extensive question. इसको हम मल्टीपल मेथड से सॉल्व करेंगे. इनफैक्ट इसमें तीनों मेथड से ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश हो जाएं. फॉर एग्जांपल, यू कैन सी दैट दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. दिस बॉल इज एट रेस्ट. इसका मतलब है दिस इज इन इक्विलिब्रियम. So if this object is in equilibrium, what is the value of resultant force? The net force acting on the ball is 0. ठीक है, तो once again हम previous वीडियो में लर्न कर चुके हैं, जब हम इसकी वेक्टर ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे all the arrows would follow each other. The starting point would be the same as the ending point. That's why the value of resultant is 0. We have to solve this question using three methods, starting off with resolving of vectors. आप लोग लिख रहे हैं शाबाश. रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स. हम प्रीवियस 4 वीडियोस में रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं. वंस अगेन वी विल डू दिस क्वेश्चन यूजिंग रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स. तो ये वाली डायग्राम मैंने आपके सामने दोबारा से ड्रॉ कर ली. ठीक है, कीप इन माइंड कि आपने वेरिएबल्स कौन से फाइंड आउट करने हैं. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन T1 एंड T2. ठीक है, तो इस केस में जो फोर्सेस एंगल पर एक्ट कर रही हैं दैट इज T1 एंड T2. फॉर दैट सबसे पहले हम इन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स फॉर्म करेंगे. फॉर द फोर्स T1, दिस इज इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट. एरोज ध्यान से लगाएंगे. एरोज मस्ट पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स द एंडिंग पॉइंट. सो एरोज वुड बी लाइक दिस and this. Okay, what is this angle? This angle is 40 degrees. The component of force, the component of T1 opposite to this angle is T1 sine 40, and this component is T1 cos 40. ठीक है. Similarly, let's resolve the second force, which is force T2. This is the horizontal component of force T2. ठीक है, and this is the vertical component of this force. So we will write the values of these components. This angle is 30 degrees. So the component of force, the component of T2 opposite to this angle is T2 sine 30, and this component, the horizontal component, is T2 cos 30. ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक होगी तो आंसर्स खराब हो जाएंगे. थोड़ा सा एक्सटेंसिव है इस केस में रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स. नाउ we have said that in this case the value of resultant force is 0. So अगर resultant force 0 होता है तो इसका मतलब है upper forces downward forces को balance out कर रही हैं. The forces along y axis are balanced and also the forces along x axis are balanced. Horizontal forces separately balanced हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, और वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं. लेट्स कॉल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस. पॉइंट आउट के इस पूरी डायग्राम में कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस प्रेजेंट है. अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो आई कैन सी दिस फोर्स एंड दिस फोर्स. ठीक है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं. सो one force is pointing towards right and one force is pointing towards left, and it means that their magnitudes are equal. So you can compare these two forces. So from x axis आप equation form कर सकते हैं T1 cos 40 is equal to T2 cos 30. So this is your equation number 1. Okay, let's write down the value of second equation, which is
forces along y axis. So if you look along y axis, जरा point out कीजिए कि y axis के along कितनी forces present है. Okay, one of the forces, this weight which is acting vertically downwards, one of the force is T1 sin 40 and the other force is T2 sin 30. दो फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं और एक फोर्स विच इज वेट दैट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो in this case, upper forces are balancing out the lower forces. We will write T1 sine 40 plus T2 sine 30 is equal to the downward force which is weight, and its value is 10 newtons. So basically you have two variables which is T1 and T2, and basically you have two equations. So somehow you have to solve these equations simultaneously to find out the value of T1 and T2. तो simultaneously equations को solve करने के लिए मैं first equation में से either T1 या T2 को subject of the formula बनाऊंगा. So making T1 subject of the formula, T1 is equal to T2 multiplied by cos 30 divided by cos 40. So here you have equation number 1. ठीक है. So इस equation को you will substitute its value in the second equation to find out the value of one variable. Here you have a second equation. इसमें मैं value substitute करता हूं. In place of T1 I will substitute T2 cos 30 multiplied by cos 40. ठीक है. इस T1 की जगह मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं. T1 sin 40 is plus T2 sin 30 is equal to 10. So T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. T1 is equal to T2 cos 30 divided by cos 40. ठीक है. Moving on, in this equation now you have just a single variable which is T2. So let's simplify it for T2. आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें. T2 is common. आपने T2 को कॉमन ले लिया. सो बेसिकली यू विल डू cos 30 मल्टीप्लाइड बाय sin 40 डिवाइडेड बाय cos 40. ठीक है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं. आपने T2 को कॉमन लिया है, सो दिस इज cos 30 मल्टीप्लाइड बाय sin 40 डिवाइडेड बाय cos 40 प्लस sin 30 इज इक्वल टू 10. ठीक है. सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है 1.226. 1.226 T2 is equal to 10. So solve it for T2. The value of T2 is 10 divided by 1.226. So its value is coming out to be 8.15 newtons. ठीक है. तो इस स्ट्रिंग में जो T2 की वैल्यू है दैट इज 8.15 न्यूटन्स. सो हाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T1 नाउ. अगर आपने T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बेसिकली आपने T1 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाया हुआ है. एंड व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन? T1 इज इक्वल टू, आप यहां से देखें ना, शाबाश, T2 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 divided by cos 40. Just substitute the value of T2 जो अभी आपने find out की है. So T2 is 8.15 multiplied by cos 30 divided by cos 40. So 8.15 multiplied by cos 30 divided by cos 40. So its value is coming out to be 9.21 newtons. T1 is equal to 9 point, अगर round off करने it would be 9.22 newtons, right? So the value of T1 is 9.22 newtons and the value of T2 is 8.15 newton. स्टूडेंट्स, अगर आप रिकॉल करें तो आपने कौन से मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स. ठीक है. तो मूविंग ऑन, यू हैव टू फर्दर मेथड जिनको अभी हमने इस क्लास में कवर अप करना है. व्हाट आर दोज टू मेथड्स?
मे बी दोज आर कंपैरेटिवली इजी फॉर यू, लेकिन अगर एग्जामिनर स्पेसिफाई करेगा आपको उस फॉर्म में ही आंसर देना है। मैंने डायग्राम एक बार दोबारा से ऐड कर ली है और अब इस केस में मैं आपको एक वेक्टर ट्राइंगल फॉर्म करके दिखाऊंगा। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग अ वेक्टर ट्राइंगल। याद रखिए वंस अगेन इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। सो अकॉर्डिंग टू ऑल प्रीवियस वीडियोस जो मैंने आपको टीच किया है, इस केस में भी सारे के सारे एरोज एक दूसरे को फॉलो करेंगे। सो लेट्स मेक अ वेक्टर ट्राइंगल। आपके पास एक नोन फोर्स है विच इज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स। आप उस नोन फोर्स के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन विच इज एक्चुअली अ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद लेट्स डिसाइड कि हमने कौन सी फोर्स को नेक्स्ट ड्रॉ करना है। उससे पहले अगर आप इस डायग्राम पे गौर से देखें तो आप इसके एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल तो देख सकते हैं। एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल T1 का एंगल 40 डिग्रीज है और T2 का एंगल 30 डिग्रीज है। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल? दिस एंगल वुड बी 90 minus 40 which is 50 degrees and this angle is 90 minus 30 which is 60 degrees. इस डायग्राम में हमें एंगल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल भी ड्रॉ करने पड़ेंगे बिकॉज दिस वेट इज वर्टिकल वेट। वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली। सो हियर्स अ क्वेश्चन विच फोर्स यू वांट टू ड्रॉ फर्स्ट। अगर मैं कहता हूं कि मैंने T1 को ड्रॉ करना है, ड्रॉइंग T1। ठीक है, T1 का एंगल वर्टिकल के साथ 50 डिग्रीज है और हॉरिजॉन्टल के साथ 40 डिग्रीज है। ठीक है, सो आई एम स्केचिंग अ लाइन ऑफ T1 which is at an angle of 40 degrees। याद रहे कि ये रफ ड्राइंग है, ये नीट ड्राइंग नहीं है बिकॉज जब आपने स्केल ड्राइंग मेथड करना है तब आपकी टू द स्केल होनी चाहिए डायग्राम। अभी आपकी डायग्राम टू द स्केल नहीं होनी चाहिए, ना हो सकती है। सो दिस एंगल इज 50 डिग्रीज। दिस फोर्स इज रिप्रेजेंटिंग T1। ठीक है, अब आपके वेक्टर की डायग्राम यहां से बनना स्टार्ट हुई थी और यहीं पर एंड होगी। कौन सा वेक्टर ऐसा है जो T1 की टिप से स्टार्ट होगा और टी और वेट की टेल पे एंड होगा? T1 के हेड से स्टार्ट होगा और वेट की टेल पर एंड होगा। दैट वेक्टर इज वेक्टर T2। तो T1 के हेड से एक लाइन को इनिशिएट करेंगे जो कि स्टार्टिंग पॉइंट विच इज द वेट की टेल वहां पर एंड होगा। सो दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग T2। ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ T2 विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल? दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। नाउ वी कैन इजीली वर्क आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 180 minus 60 minus 50। दिस वैल्यू इज 70 डिग्रीज। ओके, हैव अ क्लोज लुक ऑन दिस ट्राइंगल। क्या सारे के सारे एरोज एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं? यस। इन विच डायरेक्शन? ऑल द एरोज आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, अगर आप पहले T2 स्केच करना चाहें और बाद में T1 स्केच करना चाहें, इज इट पॉसिबल? यस। अगर आप पहले T2 ड्रॉ कर लें उस केस में आपके सारे के सारे एरोज एंटी क्लॉकवाइज होंगे, बट वंस अगेन ऑल द एरोज वुड फॉलो ईच अदर। Moving on, you have to find the value of T1 and T2 out of this triangle. Is it a right angle triangle? Is any of the angle is 90 degrees? No. So you cannot apply trigonometric ratio sine cos tan. You have to move towards sine rule and cos rule. इसके लिए हम sine rule लिखते हैं. So the equation would be T1 divided by sine of opposite angle to T1 is 60 degrees. T1 divided by sine 60 is equal to 10 divided by sine 70 and it is further equal to T2 divided by sine 50 degrees. So first two expression को यूज करते हुए you can find out the value of T1 और बाद वाले दो expressions को यूज करते हुए you can find out the value of T2. So the value of T1 is, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, 10 multiplied by sine 60 divided by sine 70। ठीक है, कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू को वर्कआउट करें। 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 divided by sine 70। So once again the value of T1 is coming out to be 9.22 newtons
ठीक है. Similarly, out of the second expression, find out the value of T2. T2 is equal to 10 multiplied by sine 50 divided by sine 70. Solve it for the value of T2. 10 multiplied by sine 50 divided by sine 70. ठीक है. This value is coming out to be 8.15 newtons. Let's compare our answers with the previous method. 9.22 is the value of T1 and 8.15 is the value of T2. जरा कंपेयर कीजिए. Yes, the value of T1 is exactly same. It is 9.22 and the value of T2 is 8.15. बच्चों, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है, थिंग्स आर इजी फॉर यू नाउ. आपको समझ आना स्टार्ट हो गई है. हमने रिजॉल्विंग मेथड से किया, वी आर गेटिंग द आंसर्स. हमने इसको उसके बाद कैलकुलेशन मेथड से किया, यू आर गेटिंग द आंसर्स. व्हाट इज लेफ्ट? द लास्ट मेथड, द ड्राइंग मेथड. आई होप कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं, इसके बाद आप कोई भी अनसीन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. सो वंस अगेन द लास्ट मेथड is drawing method and the diagram is once again in front of you. आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे with the help of scale drawing method. याद रहे कि स्केल ड्राइंग मेथड के लिए यू मस्ट हैव योर प्रोटेक्टर्स एंड 30 सेंटीमीटर ट्रांसपेरेंट रूलर्स. आपको ट्रांसपेरेंट रूलर चाहिए होते हैं. आपको क्रॉस देखना होता है. आपको प्रॉपर लाइन ड्रॉ करने के लिए प्रॉपर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी डू? जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहले हम स्केल डिसाइड करते हैं. एंड व्हाट इज द अप्रोप्रिएट स्केल फॉर दिस स्केल ड्राइंग? आई थिंक द अप्रोप्रिएट स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, लेट्स से, 2 न्यूटन्स. ठीक है, 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन्स. तो फिर 10 न्यूटन्स के लिए कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी? बड़ी डिसेंट सी लाइन ड्रॉ होगी 5 सेंटीमीटर्स की. ठीक है, जिन बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, आप फोर्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय द स्केल फैक्टर करते हैं. सो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5. ओके, स्टार्टिंग विद द स्केल ड्राइंग. जिस तरह आपने कैलकुलेशन मेथड में वेक्टर ट्राइंगल को कंप्लीट किया है, तो स्केल ड्राइंग में भी उसी तरह से आपने कंप्लीट करना है. सो व्हाट यू विल डू इज, फर्स्टली यू विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर्स टू रिप्रेजेंट वेट. अच्छा, प्रीवियस मेथड में पहले मैंने ड्रॉ किया था T1 आफ्टर ड्रॉइंग वेट. तो इस वाले मेथड में मैं पहले T2 को ड्रॉ करूंगा और फिर T1 को ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट, for 5 centimeter I will draw a vertical line. Sorry, for weight I will draw a vertical line of 5 centimeters. देखिए शाबाश. 1 2 3 4 and here it is. You have a line of 5 centimeters. आपको मेरे रूलर के स्केल को जो है उसको फोकस करना है. आप इसकी वीडियो की रेजोल्यूशन को बढ़ा के भी देख सकते हैं. सो दिस इज अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर्स. ओके, कैलकुलेशन मेथड में वेट के आपने हेड के ऊपर T1 की टेल प्लेस की थी. आपको मैंने बताया था कि T2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो फिर अब नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में लेट्स ड्रॉ T2 फर्स्ट. वंस अगेन आपको इन एंगल्स को देखना पड़ेगा बच्चों. दिस डॉटेड लाइन इज अ वर्टिकल लाइन. दिस एंगल वाज 60 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज 50 डिग्रीज. हमने प्रीवियस मेथड में एंगल्स फाइंड आउट किए थे. सो बेसिकली अगर आपने T2 को ड्रॉ करना है, सो लेट्स ड्रॉ T2. T2 का एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज 30 एंड विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल दिस एंगल इज 60 डिग्रीज. ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपने कितनी लाइन की लेंथ ड्रॉ करनी है, कितनी लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी है, वैल्यू नहीं पता. एज वी नो फ्रॉम प्रीवियस मेथड, हम इसकी लाइन को थोड़ा सा खुद से स्ट्रेच कर देंगे, खुद से एक्सटेंड कर देंगे. So this angle is 60 degrees and this line has value of T2. ये T2 को रिप्रेजेंट कर रही है. अब आपको बताया कि एक लाइन will initiate somewhere from the line of T2 and that will end at the tail of this weight. Because this was your starting point, this will be your ending point. जिधर से आपकी वेक्टर ट्राइंगल स्टार्ट हो रही है, वहीं पर आपकी वेक्टर ट्राइंगल एंड होगी. सो
आपको T1 के बारे में ये नहीं पता कि उसने स्टार्ट कहां से होना है, बट यू नो कि उसने एंड कहां पर होना है। बच्चों T1 ने एंड होना है वेट की टेल के ऊपर, एग्जैक्टली इस येलो पॉइंट के ऊपर जो मैंने शेड किया है, ठीक है। एंड व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ दैट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, बच्चों दैट एंगल वुड बी 50 degrees. So what you will do is you will pick up a protector, and with respect to weight, with respect to vertical, you will draw a line of 50 degrees at an angle of 50 degrees. अगर आप इस लाइन को स्ट्रेच करना चाहते हैं तो स्ट्रेच कर दें, अगर आप इस लाइन को वहीं तक लिमिट करना चाहते हैं तो आगे तक ना ड्रॉ करें। ये मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुका हूं। सो दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग T1, right? Now what you have to do, you have to find out the values of these lengths, and then we will multiply these with the scale factor और आपके पास T1 और T2 की वैल्यू आ जाएगी। Okay, finding out the length of T1, it is 1, 2, 3, 4 and 4.6. T1 is 4.6 centimeters. आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। सो T1 इज 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड दिस वैल्यू इज 4.6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 9.2, 9.2 न्यूटन्स। एंड फॉर T2 आप T2 की लेंथ मेजर करेंगे, शाबाश। दैट लेंथ इज 1, 2, 3, 4। इट सीम्स लाइक 4.05 टू मी। मैं इसको या तो 4 सिलेक्ट करूंगा या इसकी वैल्यू मैं सिलेक्ट करूंगा 4.1, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जनाब, आई थिंक इट इज मोर क्लोजर टू 4.1, सो इट्स लेंथ इज 4.1 multiply by scale factor which is 2, your answer is coming out to be 8.2 newtons. So the value of T1 from this method is 9.2 newtons and the value of T2 is 8.2 newtons. आपको प्रीवियस आंसर्स याद हैं, आपने नोट डाउन किए हैं। कंपेयर करें, T1 की वैल्यू 9.2 है और T2 की वैल्यू 8.2 है जी। अगर आप इसको 2SF में देखें, दिस वैल्यू इज 9.2 न्यूटन्स एंड दिस वैल्यू इज 8.2 न्यूटन्स। याद रहे कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्केल ड्राइंग मेथड से आपका आंसर थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। ओके बच्चों, सिंप्लीफाइंग थिंग्स फॉर अस, हमने वेक्टर्स को 5 वीडियोस में बड़ी डिटेल में कवर किया, ठीक है। वी स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स, फ्रॉम द ओ लेवल्स, जो मैथमेटिकल नॉलेज था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, और अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू फॉलो दिस पेज, यू हैव टू फॉलो द स्लेट फॉर द अपकमिंग वीडियोस, ताकि आपको सारे कोर्स की थॉरो रिवीजन हो सके। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, वी आर वाइंडिंग अप वेक्टर्स हियर, थैंक यू।